আমাকে অনেক কষ্ট দিয়েছ তোমরা। সমস্ত সীমা লঙ্ঘন করে একের পর এক আমার শরীরে আঘাত করেছ তোমরা। তোমরা বোঝনি আমার ব্যথা, আমার যন্ত্রণাটা। বারবার হাত জোড় করে তোমাদেরকে বলেছি, গাছ কেটো না, প্লাস্টিক বর্জন করো, অকারণে গাড়ি ঘোড়া চালিও না, শব্দ দূষণ করো না, বায়ু দূষণ করো না। কিন্তু তোমরা আমার আর্তনাদ কানেও নিলে না। বারবার চিৎকার করেছি, বিশ্ব উষ্ণায়ন বাড়ছে, ওজোন লেয়ার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সুমেরু কুমেরুতে বরফ গলতে শুরু করেছে। এত কিছু বলা সত্ত্বেও তোমরা শুধু শুনে গিয়েছ, কাজে কিছুই করনি, গুরুত্বই দাওনি আমার কোনো কথার। তোমরা শুধু ছুটেছ ব্যাংক ব্যালেন্সের পিছনে। তোমরা শুধু ভেবেছ নিজের স্বার্থের কথা। নিজের ঘরটাতে এসি লাগিয়েছ আর ভেবেছ আমার ঘরটা তো ঠান্ডা আছে, বাইরে যা পারে হোক। তোমার জন্যই অ্যামাজনের জঙ্গল জ্বলেছে, তোমার জন্যই অস্ট্রেলিয়ার জঙ্গল পুড়েছে, কত না জানি নিরীহ পশু পাখি মরেছে। তবুও তোমার জ্ঞান হয়নি, তবুও তোমার হুঁশ ফেরেনি। একটাবার আমার দিকে দেখনি, আমার শরীরটা যে ক্ষত বিক্ষত। একবার ভ্রুক্ষেপও করনি। ভ্রুক্ষেপ তো দূরের কথা, একটাবার খোঁজ নেওয়ারও সময় হয় না তোমাদের। আসলে তোমরা সবই জানো, জেনে শুনেও আমাকে মিস ইউজ করছো, সবকিছু বুঝেও আমাকে বিপদের মধ্যে ঠেলে দিয়েছ। আজ আমি অসহায়, আমি একা হয়ে গেছি। বারবার তোমাদের কাছে সাহায্য চেয়ে আমি যখন ব্যর্থ, আমার ধ্বংস যখন অবধারিত, ঠিক তখনই আমাকে বাঁচাতে, আমাকে সাহায্য করতে চলে এলো সেই মহামারী। হ্যাঁ, করোনা ভাইরাস, তোমাদের দেওয়া নাম কোভিড-19। এখন তো বেশ চুপটি করে ঘরের কোনায় বসে আছো। কই, আর তো গাছ কাটছ না, আর তো গাড়ি চালাচ্ছ না, আর তো শব্দ দূষণ শোনা যাচ্ছে না, বায়ু দূষণটাও ছেড়ে দিয়েছ। ভালো ছেলের মতো ঘরে বসে দিন গুনছ। চাদু, লাফালাফিটা বড্ড বেশি হয়ে যাচ্ছিল। বারবার বারণ করা সত্ত্বেও যখন শোনোনি, তখন তোমাদের পায়ে বেড়ি পড়াতে এসেছে করোনা ভাইরাস। কই, আর তো পার্টি করছো না, ক্লাবিং, সিনেমা, হই হুল্লোড় সব কেড়ে নিয়েছি। তোমাদের আসল অকাতটা আজ বুঝিয়ে দিয়েছি। কই, এনআরসি, ক্যাব সব মুছে গেল, ধর্মে ধর্মে বিভেদ সব ঘুচে গেল। আজ প্রাণ বাঁচানোর আশায় ছুটছ। বড় বড় দেশের নেতা মন্ত্রীরা ভুল ভাল জিনিস করতে বলছে, আর তোমরা তাই করে বেড়াচ্ছ। গো করোনা গো বললেও কিছু হবে না। আগে নিজেরা শোধরাও, আমার সাথে দুর্ব্যবহার করাটা বন্ধ করো। আর যদি আমাকে মিস ইউজ করতে থাকো, তাহলে করোনা কেন, কত অজানা রোগ, কত অজানা বিপদ তোমাদের মধ্যে চলে আসবে, তোমরা তা চিন্তাও করতে পারবে না। এখনো সময় আছে, নিজের পৃথিবীটাকে নিজের ঘর ভাবো। তোমরা মানব জাতি সত্যিই আজব। নিজেদের অন্যায়ের শাস্তি যখন নিজেরা পাচ্ছ, নিজেদের কুকর্মের ফলে যখন নিজেরা ভুগছ, তখন দোষ দিয়ে চলেছ ঈশ্বরকে, আল্লাহকে, ভগবানকে। তাহলে আজ শোনো, ঈশ্বর, আল্লাহ, ভগবান কেউ তোমাদের সাহায্য করতে আসবে না, কারণ আমি পৃথিবী তাকে বারণ করে দিয়েছি। না 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 না, ঘরের বাইরে নয়, ঘরের বাইরে নয়, ঘরের বাইরে, না না, ঘরের বাইরে নয়। এখনো করোনা রয়েছে দাপট, লড়াই চালাবো হয়ে একজোট, বেরোতে হলেও মাস্কে সাপোর্ট, রোগকে করতে জয়। এখনো করোনা রয়েছে দাপট, লড়াই চালাবো হয়ে একজোট, বেরোতে হলেও মাস্কে সাপোর্ট, রোগকে করতে জয়। এখনো আছে সময়, এখনো আছে সময়, ঘরের বাইরে নয়, ঘরের বাইরে, না না, ঘরের বাইরে নয়। বাইরেতে কত আছে দেখবার, কত কি চেনার, কত কি কেনার, সবই তো বাকি, কিছুই দেখা হয় নাই। বাইরেতে কত আছে দেখবার, কত কি চেনার, কত কি কেনার, ঘরে তবু বসে রয়েছি বেকার, ঘরে তবু বসে রয়েছি বেকার, করোনা করতে জয়, করোনা করতে জয়। এখনো আছে সময়, এখনো আছে সময়, ঘরের বাইরে, না না, ঘরের বাইরে, না না, ঘরের বাইরে নয়। চলো রে, কোথাও ঘুরে আসি কি? কাজ নেই ঘুরে, কাজ নেই ঘুরে, আড্ডাটা জুড়ে,
বেরোতেও যদি হয় ভিড় থেকে দূরে, বেরোতেও যদি হয় ভিড় থেকে দূরে। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आज मैं बच्चों से संबंधित विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। कोरोना वायरस बच्चों पर लंबे समय तक रहेगा अदृश्य खतरा, मानसिक स्वास्थ्य पर भी रहेगा गहरा असर। बच्चों में कोरोना संक्रमण के मामले भले ही कम रहे हों, लेकिन इस महामारी का उनके भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य पर गहरा असर पड़ रहा है। विशेषज्ञों का कहना है कि कोरोना का एक अदृश्य खतरा बच्चों के भविष्य में लंबे समय तक प्रभावित करेगा। घरों में कैद बच्चे भले ही आवश्यक कर्मचारी या फ्रंटलाइन योद्धा नहीं हैं, लेकिन वे दुनिया का साझा भविष्य जरूर हैं। लिहाजा उन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बाल चिकित्सा के विशेषज्ञों द्वारा बताए वो 5 प्रमुख प्रभाव जो दुनिया भर के बच्चों पर पड़ रहे हैं। पहला, टीकाकरण से हुए दूर। बच्चों के बीमारियों से बचाने का एक ही तरीका होता है टीकाकरण, लेकिन कोरोना काल में दुनिया भर में घरों में कैद बच्चों में टीकाकरण की दर तेज़ी से घट गई है। पीडियाट्रिशनों का कहना है कि बच्चे आजकल खसरा, काली, खांसी से लेकर मेनिंजाइटिस तक के जरूरी टीकों से दूर हो गए हैं। घर से बाहर निकलने से डर रहे अभिभावक वैक्सीन की तय तारीख आगे के लिए टाल रहे हैं। सरकारों ने भी बच्चों को लेकर गंभीरता नहीं दिखाई है। 24 से ज़्यादा देशों में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम रोक दिया गया है। दूसरा, भावनात्मक दबाव से और बेचैनी से घिरे हैं बच्चे। डॉक्टरों का कहना है बच्चों के मन और दिमाग में भी महामारी का भय व्याप्त है। परिवार में बड़े सदस्यों में घबराहट का असर उन पर भी पड़ रहा है। कई घरों में बड़े बुजुर्गों की कोरोना से हुए मौत के बच्चों में सदमे जैसा है। इसमें दो राय नहीं कि अभिभावक उनका पूरा ख्याल रख रहे हैं, लेकिन उनके भय से निपटने के लिए वर्तमान और भविष्य में ज़्यादा मदद की ज़रूरत होगी। तीसरा, सामाजिक दूरी के कारण टूटा आपसी जुड़ाव। जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनकी भावनात्मक ज़रूरतें में बदल जाती है। महामारी के दौर में माता पिता, परिवार दबाव में हैं, लिहाजा बच्चे उनके साथ पहले जैसा जुड़ाव महसूस नहीं कर रहे हैं। वे अन्य कारणों से बच्चों के संपर्क से भी दूर हो रहे हैं। साथ ही मास्क पहनने, बार बार हाथ धोने, लोगों से दूर रहने का भय उन पर हावी हो रहा है। पार्क और खेलकूद की जगह उनके लिए सपने जैसी होते जा रही है। चौथा, साधनों के अभाव में गरीब बच्चों पर ज़्यादा प्रभाव। दुनिया में गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है। गरीब परिवारों के बच्चे आम दिनों में ही बुनियादी ज़रूरतों के लिए संघर्ष करते हैं, जब कोरोना महामारी में सबसे ज़्यादा प्रभावित वर्ग ये बच्चे हैं जिनके माता पिता के पास कोई आर्थिक सुरक्षा नहीं है। कई दक्षिण अमेरिकी, अफ्रीकी, मध्य पूर्व और एशियाई देशों में इनके पास पर्याप्त स्वच्छता और आजीविका के साधन तक नहीं है। लॉकडाउन के बाद इनमें कोरोना संक्रमण का खतरा मंडराता रहेगा। पांचवा, पढ़ाई का नुकसान। आजकल स्कूल बंद है तो शिक्षक ऑनलाइन कक्षाएं दे रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में ऐसे बच्चे हैं जो इस सुविधा से अछूते हैं। ज़रूरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों के अभाव में कमज़ोर वर्गों के बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। अगर वे किताबें से भी नहीं पढ़ पा रहे हैं और उनके सवालों का जवाब देने वाला भी कोई नहीं है, जब ऐसे स्कूल बच्चों में लौटेंगे तो इन पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि स्कूल अभी बच्चे को किताब भी नहीं दे पाए हैं और ना सिलेबस दे पाए हैं। बहुत सारी अभी कमियां स्कूल के तरफ से ही कोरोना काल पीरियड में देखने में आते जा रही है। डॉक्टरों की ऐसे स्थिति में अभिभावकों से, गार्जियन से क्या अपील है? ऐसे कई बच्चे हैं जो अन्य बीमारियों से ग्रस्त हैं, लेकिन पर्याप्त इलाज नहीं मिल रहा है। हाल ही में सामने आए कुछ मामलों में बच्चे ल्यूकोमिया जैसे बीमारियों से ग्रस्त थे, लेकिन अभिभावक उन्हें अस्पताल की इमरजेंसी में ले जाने से डर रहे थे। डॉक्टरों ने अभिभावकों से अपील की है कि महामारी का मतलब यह नहीं कि अन्य इलाज पूरी तरह बंद है। बच्चों को जरूरी इलाज के लिए अस्पताल लेकर आएं, इसमें अभिभावक और बच्चों दोनों का भला होगा। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार।
कोरोना पर बड़ा खुलासा, विटामिन डी की कमी से भी संक्रमण का खतरा। कोरोना से उन लोगों को भी खतरा हो सकता है जिन्हें विटामिन डी की कमी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ऐसे अधिकतर लोगों की मौत भी हो सकती है। ये हैरान करने वाला खुलासा 20 यूरोपीय देशों में विटामिन डी के औसत स्तर को संक्रमित मरीजों की दर और उनकी मृत्यु दर की तुलना करके किया गया है। इसके खुलासे के बाद वैज्ञानिक इस वायरस और विटामिन डी के बीच संबंध ढूंढने में जुट गए हैं। रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में अहम भूमिका। वैज्ञानिक का कहना है कि वायरस की चपेट में आने वाले व्यक्ति में विटामिन डी का स्तर कम है तो उसे खतरा अधिक है। विटामिन डी शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाता है। अलग से डोज लेने पर करना होगा विचार। वैज्ञानिक के अनुसार संक्रमण से बचाने के लिए विटामिन डी की 2 डोज देने पर विचार करना होगा। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि विटामिन डी से संक्रमित व्यक्ति के ठीक होने की भी संभावना बढ़ सकती है। एक अध्ययन से पता चला है कि विटामिन डी की डोज से एक व्यक्ति के सीने में संक्रमण की संभावना 50% कम हो गई। जानिए कैसे बनता है विटामिन डी। 5-10 मिनट धूप में बिताने से फायदा। सुबह के समय व्यक्ति द्वारा 5 से 10 मिनट तक धूप में गुजारने से कुछ हद तक इसकी पूर्ति हो सकती है। इस दौरान सामाजिक दूरी बनाए रखें। शरीर को विटामिन डी खाद्य पदार्थों जैसे मछली, मशरूम आदि से भी मिलता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। ছেড়েছো তো অনেক কিছুই পুরনো অভ্যেস, পাড়ার মোড়ে আড্ডা জমার দিনটা হলে শেষ। ছেড়েছো তো অনেক কিছুই পুরনো অভ্যেস, পাড়ার মোড়ে আড্ডা জমার দিনটা হলে শেষ। ছেড়েছো তো অনেক কিছুই বেশ কিছুদিন হলো, পুরনো স্বাদ আর আহ্লাদ আর কটা দিন চলো। হাল ছেড়ো না, হাল ছেড়ো না বন্ধু, বরং কণ্ঠ ছাড়ো জোরে। দেখা হবে তোমায় আমায় নতুন দিনের ভোরে। ছেড়েছো তো অনেক কিছুই পুরনো অভ্যেস, পাড়ার মোড়ে আড্ডা জমার দিনটা হলে শেষ। ছেড়েছো তো অনেক কিছুই বেশ কিছুদিন হলো, পুরনো স্বাদ আর আহ্লাদ আর কটা দিন চলো। হাল ছেড়ো না, হাল ছেড়ো না বন্ধু, বরং কণ্ঠ ছাড়ো জোরে। দেখা হবে তোমায় আমায় নতুন দিনের ভোরে। ছেড়েছো তো অনেক কিছুই বেড়াতে সেই যাওয়া, সকাল বিকেলে এদিক সেদিক ভিক্টোরিয়ার হাওয়া। ছেড়েছো তো অনেক কিছুই বেড়াতে সেই যাওয়া, সকাল বিকেলে এদিক সেদিক ভিক্টোরিয়ার হাওয়া। ছেড়েছো তো অনেক কিছুই বেশ কিছুদিন হলো, পুরনো স্বাদ আর আহ্লাদ আর কটা দিন চলো। হাল ছেড়ো না, হাল ছেড়ো না বন্ধু, বরং কণ্ঠ ছাড়ো জোরে। দেখা হবে তোমায় আমায় নতুন দিনের ভোরে। জানি তো সব একঘেয়ে লাগে ঘরবন্দি থেকে, জানি তো সব একঘেয়ে লাগে ঘরবন্দি থেকে। লড়াই তবু আর কটা দিন ধৈর্য ধরে রেখে, বন্ধু তোমার স্বপ্নগুলো আঁকড়ে ধরো জোরে। সবাই মিলে থাকবো ভালো, বাঁচবো নতুন করে। লড়াই করার জেদটাকে তাই হারিয়ে ফেলো না,
জিতবে শেষে মানুষ দেখো, হারবে করোনা। হাল ছেড়ো না, হাল ছেড়ো না বন্ধু, বরং কণ্ঠ ছাড়ো জোরে। দেখা হবে তোমায় আমায় নতুন গানের ভোরে। ছেড়েছো তো অনেক কিছুই পুরনো অভ্যেস, পাড়ার মোড়ে আড্ডা জমাট দিনটা হলে শেষ। ছেড়েছো তো অনেক কিছুই পুরনো অভ্যেস, পাড়ার মোড়ে আড্ডা জমাট দিনটা হলে শেষ। नमस्कार, मैं डॉक्टर मदन लाल भट्ट, वाइस चांसलर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी। आज मैं संक्षेप से कोविड-19 कोरोना वायरस इन्फेक्शन से बचने के लिए और उसके खतरों के बारे में संक्षेप में बताने जा रहा हूं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि विश्व में 98% कोरोना वायरस के मरीज माइल्ड नेचर के हैं, केवल 2% मरीज गंभीर हैं। इन 98% मरीजों को अगर केवल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, आराम करें और किसी तरीके की कोई स्ट्रेस या टेंशन न लें तो ऐसे मरीज स्वतः ठीक हो सकते हैं। केवल 2% ऐसे मरीज हैं जो गंभीर स्थिति में हैं और उनकी खतरे के लिए उनके साथ ज़्यादा उम्र का होना, 65-70 साल से ज़्यादा की उम्र, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, किडनी या कैंसर जैसी किसी बीमारी से ग्रसित होना, या शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता किसी अन्य कारण से कम हो जाने के कारण उनको खतरा है। वास्तव खतरा तो 1% से कम है, क्योंकि कम्युनिटी स्प्रेड जो विश्व में हो गया है इस समय, जो सर्विलांस सोसाइटी में हो रहा है कम्युनिटी में, उससे ये देखा जा रहा है कि हजारों हजार मरीज ऐसे हैं और भारतवर्ष में 60 से 70% ऐसे मरीज हैं जो एसिम्टोमेटिक हैं। अगर उन एसिम्टोमेटिक मरीजों को देखा जाए तो भारत में भी मृत्यु दर 1% से कम है। वास्तव में मृत्यु दर तो 3% है जिन मरीजों को देखा गया है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर सोसाइटी का पूरा सर्वे किया जाए तो 1% से कम मृत्यु दर निकल के आएगी। ऐसी स्थिति में बचने के लिए जो सामान्य उपाय हैं मैं उनको संक्षेप में बता रहा हूं, जिसको कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में स्वस्थ व्यक्ति उपाय के माध्यम से बच सकता है। और कोई व्यक्ति अगर संक्रमित हो गया कोरोना वायरस से तो भी उससे ठीक होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा रहेगी। पहली तो बात यह है कि व्यक्ति को स्वस्थ जीवन शैली का पालन करना चाहिए। स्वस्थ जीवन शैली में 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना आवश्यक है। इस नींद के घंटे में रात को 10 बजे से प्रातः 4 बजे का समय अवश्य इंक्लूडेड होना चाहिए। दूसरा आवश्यक है कि व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए। पर्याप्त पानी में 3 से 4 लीटर या 5 लीटर तक गर्मी में धूप में निकलने वाले व्यक्ति को, और इस गर्मी के बावजूद भी गुनगुना पानी लेना स्वास्थ्य के लिए ज़्यादा हितकारक है। तीसरा जो अति आवश्यक विषय है कि सुपाच्य पौष्टिक भोजन लेने की आवश्यकता है समय समय से, और फलों और सब्जियों का बहुतायत में प्रयोग करने की आवश्यकता है। इस समय पे फास्ट फूड, जंक फूड, कोल्ड ड्रिंक्स, आइसक्रीम, इन सब से बिल्कुल बचने की आवश्यकता है। स्मोकिंग से बिल्कुल बचने की आवश्यकता है। और कुछ ऐसी औषधियां हैं जो पूरा विश्व जिनकी गुणवत्ता को मानते हुए प्रयोग कर रहा है, वो भारत के आयुर्वेद में भी प्रचलित हैं, उनका भी प्रयोग करने की आवश्यकता है बचने के लिए और इलाज की दृष्टि से भी। इसमें सबसे आवश्यक है जो सिट्रस फ्रूट्स हैं, नींबू, संतरा, मौसमी, उनका सेवन करना। नींबू को गुनगुने पानी में डाल करके अदरक के टुकड़े के साथ अगर उनको उबाल के लिया जाए तो वो रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है और कोरोना में ठीक होने की संभावना भी बढ़ावा देता है। उसके साथ गिलोय रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है, गिलोय का काढ़ा लेना, या अदरक, काली मिर्च का काढ़ा लेना तुलसी के पत्ते के साथ उबाल करके सुबह शाम लेना भी इसमें हितकर है। दिन भर गर्म पेय पदार्थ लेते रहना, जैसे हर्बल टी है या ग्रीन चाय का प्रयोग करना भी इसमें स्वास्थ्य के लिए हितकर है। हल्दी का भी ऐसा प्रभाव देखा गया है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाती है, वायरल इन्फेक्शन से बचत करती है। तो हल्दी दूध में डाल करके साथ में अगर काली मिर्च को भी प्रयोग किया जाए, खास तौर से हल्दी 4 तो काली मिर्च 1 के अनुपात में अगर दूध में डाल करके लिया जाए तो ये भी कोरोना इन्फेक्शन में सहायक है। और लहसुन में भी एंटीवायरल प्रॉपर्टीज देखी गई हैं, तो लहसुन, काली मिर्च और अदरक का मिश्रण भी प्रयोग किया जाए, कच्चा या खाने के साथ
सलाद के रूप में थोड़ी सी मात्रा में, तो ये भी रोग से बचाने में सहायक है। और कोई भी व्यक्ति इसमें जो संक्रमित होता है, अगर वो तनाव बहुत नहीं लेगा, घबराहट का शिकार नहीं होगा और अपनी कोमॉर्बिड कंडीशंस जो भी हैं, अगर डायबिटीज़ है, थायराइड की प्रॉब्लम है या अन्य कोई प्रॉब्लम है, तो उसका समुचित उपचार लेते रहें और उनसे बचने की आवश्यकता है। अगर वो बीमारी कंट्रोल में रहेगी तो इससे खतरा उतना नहीं होगा। और एक सौभाग्य की बात है कि प्रारंभ में माना जाता था कि गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए भी ये बहुत खतरनाक बीमारी हो सकती है, लेकिन जो भारत में देखा गया है कि गर्भवती महिलाएं भी बहुत जल्दी ही शीघ्र वायरल फ्री होकर के डिस्चार्ज हो रही हैं। हमारे किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में 2 महिलाएं 6 महीने और 8.5 महीने की प्रेगनेंसी के साथ 5 दिन से कम समय में वायरल फ्री होकर के डिस्चार्ज हो गई। छोटे बच्चों में भी 3 महीने का बच्चा, एक गोरखपुर में, हमारे यहाँ 2.5 वर्ष का एक बच्चा, उत्तर प्रदेश में एक और 9 महीने का बच्चा, ऐसे महाराष्ट्र में भी छोटे बच्चे, नवजात शिशुओं को वायरल इन्फेक्शन से, इस कोरोना वायरस से मुक्ति बहुत ही शीघ्र मिल गई। तो उन नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल, प्रेसिडेंट हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड सिमाओ, पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड एडिटर मेटाक्स। कितना समय लगेगा मेरे को कोरोना डेवलप होने में अगर मैं एक पॉजिटिव पेशेंट को मिलता हूं? तो कंफ्यूजन है लोगों के मन में। आइए इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी एक पेशेंट को टीबी है, फेफड़ों का टीबी है, उसका स्पूटम में एएफबी पॉजिटिव है और वो मेरे साथ में प्लेन में जर्नी कर रहा है और 4 घंटे के बाद में हमारा प्लेन लैंड कर जाता है, मेरे को टीबी होने के चांसेस बहुत कम हैं अगर वो मेरे साथ में भी बैठा हुआ है तो, क्योंकि टीबी का एक्सपोजर टाइम मेरे को कम से कम 8 घंटे का चाहिए। यानी कि अगर मैं पूरे इंडिया में कहीं भी ट्रैवल कर रहा हूं और उस प्लेन में एक टीबी का मरीज है जिसने मास्क नहीं पहन रखा, तो भी मेरे को टीबी का खतरा नहीं है। इसे बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट टाइम। कॉन्टैक्ट टाइम कोरोना के अंदर में 30 मिनट का है, कुछ लोग 10 मिनट का भी बोलते हैं, लेकिन अगर हमारा जो सिमाओ गाइडलाइंस है, कन्फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ऑफ एशिया एंड ओशिनिया, हमारी गाइडलाइंस में ये 30 मिनट्स का है। यानी कि अगर आप किसी भीड़ में जाते हो और किसी से भी 2, 3, 4 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलते हो और उसमें अगर कोई कोरोना का पेशेंट पॉजिटिव है तो आपको होने का चांस नहीं है। अगर आपको कोरोना पॉजिटिव है और आप एक 100 लोगों की भीड़ में जाते हो और किसी से भी 2 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलते, तो हो सकता है किसी को भी वो इन्फेक्शन ना हो, अनलेस आपने सरफेस पे रख दिया और लोग उस सरफेस को टच करें। हम सिर्फ ड्रॉपलेट टू ड्रॉपलेट, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन विच इज ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं। तो जो कांटेक्ट टाइम है वो 30 मिनट का है। यानी कि अगर मैं एक डॉक्टर हूं, मैंने आज 100 पेशेंट देखे या मैंने आज 10 पेशेंट देखे, उसमें से एक पेशेंट कोरोना का पेशेंट था, मुझे नहीं पता कौन था, और मैंने किसी को भी आधा घंटे से ज़्यादा एक बारी में समय नहीं दिया, तो मेरे को प्रैक्टिकली इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं है, प्रोवाइडेड मैं अपनी नॉर्मल प्रिकॉशंस ले रहा हूँ। सो साइकेट्रिस्ट को अपना काउंसलिंग टाइम आधा घंटे से कम कर देना चाहिए। डॉक्टर सर्जन्स को अगर उनका सर्जिकल टाइम लेस देन 30 मिनट्स है, इट इज़ फाइन। इफ इट इज़ मोर देन 30 मिनट्स तो डेफिनेटली 2 सर्जन्स को मिलकर सर्जरी करनी चाहिए, ताकि कोई भी एक सर्जन को आधा घंटे से ज़्यादा का सर्जिकल टाइम ना हो। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो फिर आप आधा घंटे से कम का समय रखिए। अब पिक्चर हॉल जाएंगे, वो तो पॉसिबल नहीं होगा कि आधा घंटे का होगा, इसलिए पिक्चर हॉल में हमेशा आपका रिस्क रहेगा। अगर मॉल पे घूमने जाएंगे तो रिस्क रहेगा, आपने कुछ खरीदना है, गए, खरीदा, वापस आ गए, तो आपको रिस्क नहीं है। याद रखिए, जो कॉन्टैक्ट टाइम है उसे हम 30 मिनट का बोलते हैं, लेकिन विद प्रिकॉशंस। अगर आप मॉल में, आप बाकायदा मॉल के अंदर में जा रहे हैं, आपने मास्क पहन रखा है, और मास्क पहनने के बाद में अगर आपका कॉन्टैक्ट टाइम वहाँ पे विजिटिंग लाइन लेस देन 30 मिनट्स है और आपने हैंड वॉश की पूरी फैसिलिटी की हुई है, पूरी प्रिकॉशंस ली हुई है, तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा।
अब ट्रेन के अंदर में डेफिनेटली आपका इन्फेक्शन रेट ज़्यादा होगा, बिकॉज ट्रेन आधा घंटे में तो नहीं पहुंचाएगी। उस सिचुएशन में आपको 6 फीट का सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है, और साथ में आपको ग्लव्स पहन के रहना है और हैंड वॉशिंग करना है। अगर ट्रेन के अंदर में आप बाथरूम में जा रहे हो तो हर चीज़ को क्लीन करो, फिर बाथरूम का इस्तेमाल करो, तो उसमें आपका खतरा मिनिमाइज हो जाएगा, जीरो नहीं होगा। कोरोना नमस्ते। কলকাতাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেমন আছো কলকাতা। কলকাতা উত্তরে বলেছে, জিজ্ঞাসা করছো কেমন আছি, এক কথায় বলি একদম ভালো নেই। যদি জিজ্ঞাসা করো কেন, তাহলে বলি যখন আমার বয়স ছিল অল্প, সকল বাধাকে অতিক্রম করার ক্ষমতা ছিল আমার, তখন আমি ছিলাম শান্ত, আমার বুকে ছিল না কোনো অশান্তির ছাপ। কিন্তু আজ আমি যখন 300 বছর অতিক্রান্ত এক বৃদ্ধ, তখন আমার চারিপাশ ঘিরে ফেলেছে অশান্তির কালো ছায়া। কাগজের পাতা খুললেই পাঠকেরা বিরক্ত, চারিদিকে হানাহানি, দ্বন্দ্ব, দুর্ঘটনা, মূল্যবৃদ্ধি, আমার বিরুদ্ধে তাদের অভিযোগের সীমা নেই। কিন্তু কেউ বোঝে না আজ আমি কত ক্লান্ত। আগে আমি প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নিতাম, আর এখন গগনচুম্বী অট্টালিকার সারি আমার নিঃশ্বাসকে প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। কত ঝড় বয়ে গেছে আমার বুকের ওপর দিয়ে, তবুও তোমরা সবাই বলেছ, আহা তুমি সুন্দরী কত কলকাতা। কিন্তু আজ হঠাৎ এক কালবৈশাখী ঝড়ের দমকা হাওয়া নিমেষের মধ্যে আমার চোখের সমস্ত আলোকে অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছে। আমি হতবাক, চারিদিকে মানুষের যন্ত্রণা, ভয়, মাটি থেকে আকাশ সবই আজ স্তব্ধ হয়ে গেছে। ছোট্ট শিশু থেকে বৃদ্ধ সবাই আমাকে প্রশ্ন করেছে, তুমি আমাদের রক্ষা করো, কি করে আমি আমার ভালোবাসার মানুষদের বাঁচাবো। দাদা ঠাকুর আমাকে নিয়ে গান গেয়েছিলেন, আমি নাকি কেবলই ভুলে ভরা। সত্যি কি আমি কেবলই ভুলে ভরা? আমাকে এই ভুলের পথ থেকে মুক্ত করতে পারো একমাত্র তোমরা, যাদের ঘিরে আমি আজও বেঁচে আছি, যারা আমার আশা ভরসা স্থল। তাই বলি বন্ধুরা, আজ এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি থেকে মুক্ত করতে তোমরা আমার হাত শক্ত করে ধরো, আমাকে শক্তি দাও। আমি খুব আশাবাদী, একদিন নিশ্চয়ই সব দুর্যোগের মেঘ কেটে গিয়ে আবার আমি তোমাদের সঙ্গে আলোয় আলোকিত হয়ে উঠব। তখন আমিও তোমাদের সঙ্গে একভাবে বলবো, আলোয় আলোকময় করে হে এলে আলোর আলো, সবার নয়ন হতে আধার মিলালো মিলালো। হ্যাঁ, আমি তোমাদের সহস্র ভুলে পড়া সুন্দরী কলকাতা।
नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। आइए हम लोग जानते हैं गौतम बुद्ध के 10 अनमोल वचन। भगवान बुद्ध कहते हैं कि अतीत पर ध्यान मत दो, भविष्य के बारे में मत सोचो, अपने मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, वह कोई भी पाप कर सकता है। इसलिए तू ये इस हृदय में अंकित कर ले कि मैं हंसी मजाक में भी कभी असत्य नहीं बोलूँगा। ये लोग भी कैसे हैं, सांप्रदायिक मतों में पढ़कर अपने तरह की दलीलें पेश करते हैं और सत्य और असत्य दोनों का प्रतिपादन कर देते हैं। अरे सत्य तो जगत में एक ही है, अनेक नहीं। सत्यवाणी ही अमृतवाणी है, सत्यवाणी ही सनातन धर्म है। सत्य सदर्थ सधर्म पर संतजन सदैव दृढ़ रहते हैं। असत्यवादी नरकगामी होते हैं और वे भी नरक में जाते हैं जो करके नहीं किया करते हैं। जिसे जानबूझकर झूठ बोलने में लज्जा नहीं, उसका साधुपना औंधे घड़े के समान है। साधुता की एक बूंद भी उसके हृदय घट के अंदर नहीं है। सभा में, परिषद में अथवा एकांत में किसी भी झूठ ना बोलें। झूठ बोलने के लिए दूसरों को प्रेरित ना करें और ना झूठ बोलने वाले को प्रोत्साहन दें। असत्य का सर्वांश में प्रतिज्ञा कर देना चाहिए। जीवन में हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा हो कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी। इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वह एक शब्द है जो शांति लाए। संतोष सबसे बड़ा धन है, वफादारी सबसे बड़ा संबंध है और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। अगले कुछ महीनों में देश के सामने एक बहुत बड़ा क्राइसिस आने वाला है, इकोनॉमिक क्राइसिस। India's GDP growth rate projection, which was around 6% for the year 2021, has been slashed to 0.8%. The forex reserves are dying. Rupee has taken a hit. The country has been virtually shut down since March 25th. The Indian economy may lose 18 lakh crore rupees. The situation is so grim that it's worse than World War II. पर अच्छी बात यह है कि आप और मैं मिलकर इंडियन इकोनॉमी को बचा सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी को इस क्राइसिस से बचाने के लिए हमें एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन इस लड़ाई में हमें सरहद पर नहीं, दुकानों में जाना है। तलवार नहीं, सुविधाएं उठानी है। इस लड़ाई में किसी को मारना नहीं है, हमारे देश की इकोनॉमी को जिंदा रखना है। इस लड़ाई में हमें एक फौजी की तरह संकल्प लेना है कि खरीदेंगे वही जो इस देश में बना है। When you buy any product that's made in India, you can help boost the manufacturing sector, which is the backbone of any country. You can help increase the employment in India and the money stays in our country. तो क्या आप बनना चाहते हैं फौजी? क्या आप होना चाहते हैं जनता आर्मी में शामिल? तो बस अपने सोशल मीडिया पे किसी एक इंडियन प्रोडक्ट के बारे में बताएं जो आप यूज करते हैं। अपने 3 फ्रेंड्स को टैग करें और उन्हें भी शामिल करें जनता आर्मी में। जनता आर्मी की ये चेन लोगों को इंडियन प्रोडक्ट्स यूज करने के लिए मोटिवेट करेगी। जर्मनी, जापान, रशिया, हम इन देशों के एग्जांपल्स देते हैं क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये देश भी कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। एंड येट these countries stand strong because every person did their bit to build the country again. तो चलो बॉर्डर के इस पार के एनिमी से लड़ते हैं देश में बने प्रोडक्ट्स खरीद के। Don't forget, make a video post about any one Indian product that you use and tag 3 friends to encourage them to do the same. Join the movement. Use the hashtags मैं भी फौजी and जनता आर्मी. Log on to maibhifauji.com to know more about the movement. इस लड़ाई में मैं बनूंगा स्वदेशी क्योंकि इस देश का मैं भी फौजी।
সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে, শোনো শোনো পিতা, কহ কানে কানে, শোনাও প্রাণে প্রাণে মঙ্গল বারতা। সকাতরে ওই কাঁদিছে সকলে, শোনো শোনো পিতা, কহ কানে কানে, শোনাও প্রাণে প্রাণে মঙ্গল বারতা। কহ কানে কানে, শোনাও প্রাণে প্রাণে মঙ্গল বারতা। কহ কানে কানে, শোনাও প্রাণে প্রাণে মঙ্গল বারতা। ক্ষুদ্র আশা নিয়ে রয়েছে বাজিয়ে সদাই ভাবনা, যা কিছু পাই হারায় যায়, না মানে সান্ত্বনা। যা কিছু পাই হারায় যায়, না মানে সান্ত্বনা। যা কিছু পাই হারায় যায়, না মানে সান্ত্বনা। সুখ আসে দিশে দিশে, বেড়ায় কাতরে, মরিচিকা ধরিতে যায় এ মরু প্রান্তরে। মরিচিকা ধরিতে চায় এ মরু প্রান্তরে। মরিচিকা ধরিতে যায় এ মরু প্রান্তরে। ফুরায় বেলা ফুরায় খেলা, সন্ধ্যা হয়ে আসে, কাঁদে তখন আকুল মন, কাঁপে তার আসে। কাঁদে তখন আকুল মন, কাঁপে তার আসে। কাঁদে তখন আকুল মন। কাঁপে তার আসে। কি হবে গতি বিশ্বপতি, শান্তি কোথা আছে? তোমারে দাও আশা পুরাও, তুমি এসো কাছে। তোমারে দাও আশা পুরাও, তুমি এসো কাছে। তোমারে দাও আশা পুরাও, তুমি এসো কাছে।